हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम एक टर्म लेंगे क्लोन। क्लोन क्या होता है? वन विच इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। तो जीन क्लोनिंग रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो जीन क्लोनिंग क्या हुआ कि हम एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए उसकी आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उस सारे कंसेप्ट को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग की हेल्प से हम मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं अपने टारगेट डीएनए सीक्वेंस की। तो जो जीन क्लोनिंग की मेन रिक्वायरमेंट्स है डेट इज प्रेजेंस ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल, सेकेंड वन इज द सोर्स डीएनए, एंड थर्ड वन द होस्ट इन विच वी विल transfer our recombinant DNA molecule. So, for example, this is the bacterial cell, that is the E. coli cell. So, as you know, it is a prokaryotic cell, and within the bacteria, your genomic DNA is present in a free form. यानी कि वो किसी ऑर्गेनेल के या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में प्रेजेंट नहीं होता, वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है, एंड इट इज़ नोन बाय द टर्म डेट इज़ न्यूक्लियोइड। तो जो आपका बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा जो मटेरियल है इट इज़ नोन एज द प्लाज्मिड। तो अगर हम प्लाज्मिड को डिफाइन करें, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो द प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर योर plasmid DNA molecule. So first we have to isolate this plasmid molecule, and here your plasmid will act as cloning vector. Okay, so vectors are basically your vehicle which will carry your foreign DNA into the host cell. So there are number of different vectors which are used for the purpose of cloning. I will make a separate video on cloning vectors, but here we are talking about plasmid. And this plasmid is a type of cloning vector, and this plasmid is isolated from the prokaryotic, that is bacterial cell. Simultaneously we will isolate our gene of interest. This gene of interest will be present within the DNA molecule of a specific organism. So first of all we will isolate the DNA from that particular organism. After the isolation of DNA we will restriction digest it. Okay, that means we perform restriction digestion with the help of restriction enzymes on our isolated DNA molecule. Along with this we will also digest our vector molecule. Here it is plasmid with the same restriction enzyme. That means we have digested our plasmid as well as isolated DNA with the same restriction enzyme, resulting in these form of structures. And after we have restriction digested our source DNA as well as the vector with the same restriction enzyme, so we will be having the same restriction sites. As a result, it will be easier for the DNA ligase enzyme to join these two fragments. Okay, so after restriction digestion we will perform DNA ligation, and your DNA ligase will form a double stranded circular molecule combining your plasmid molecule carrying the gene of interest, and this particular molecule is known as the recombinant DNA molecule. It is known as the recombinant DNA molecule because it is having now the DNA from two different sources. Okay, so you have joined DNA from two different sources in order to form this recombinant DNA molecule. Now we have to transfer this recombinant DNA molecule inside the host cell, and this process is known as the transformation. You might have studied about three forms of transfer of genetic material in case of bacterial genetics. Those three modes are your transformation, transduction and conjugation. So the definition of transformation is uptake of any foreign DNA by the bacterial cell from its surrounding. यानी उसके सराउंडिंग मीडियम में जो भी कोई फॉरेन डीएनए पार्टिकल प्रेजेंट है वो उसका अपटेक करेगा, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ऐसी होती हैं दोज हु आर नेचुरली कम्पिटेंट, यानी कि उनके जो सराउंडिंग में जो डीएनए प्रेजेंट है वो उसका अपटेक इजीली कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल योर बैसिलस, हाइमोफाइलस। लेकिन यहाँ जो हम जीन क्लोनिंग में वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं विद द ई कोलाई। सो ई कोलाई के साथ वर्क इजीली इसलिए करते हैं क्योंकि इसका डबलिंग टाइम बहुत कम है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। साथ ही इसका ईजी टू हैंडल है, इस करके हम ई कोलाई को यूज़ करते हैं इन द फॉर द पर्पज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। और ये जो हमारा ई कोलाई है, इट इज़ नॉट नेचुरली कम्पिटेंट, ये नेचुरली कम्पिटेंट नहीं होता, इसको हमें पहले कम्पिटेंट बनाना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू मेक योर ई कोलाई सेल कम्पिटेंट, फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड CaCl2 और कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट। हम कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी हेल्प से आपका जो बैक्टीरियल डीएनए दैट इज ई कोलाई का जो डीएनए है, ई कोलाई का जो सेल है वो आपका competent बनेगा। once you have formed the competent cells, now you have to perform different steps in order to transfer your DNA into the host cell, and this transformation is mostly done either with the help of electroporation or heat shock method. So in case of electroporation, electroporator is used in which short electric pulses are provided so that your foreign DNA is uptaken by the host cell. And in case of heat shock method, you provide sudden temperature fluctuation. In this, first of all, you incubate your sample at around 42 degrees Celsius for around 90 seconds and then immediately shift that sample onto ice. So this sudden fluctuation in the temperature results in the uptake of foreign DNA by the bacterial cell. Okay, so with the help of this transformation, your recombinant DNA molecule will enter into the host cell. Okay, now your host cell will divide, and with each division your recombinant DNA molecule will be transferred into the progeny. In this way, at the end you will have large number of colonies in which your recombinant DNA molecule would be transferred. Okay, so this is the diagrammatic representation of the gene cloning, that how we clone a particular gene and how we transfer that recombinant DNA molecule into the host cell. Okay, now here I have used the term vector, which is used as a carrier or vehicle in order to transfer the recombinant DNA into the host cell. So there are certain properties of vector molecule. First one is origin of replication. That means your vector should be able to self-replicate. It should not depend upon the host cell for its replication. And for replication purpose, it should be having ORI sites, ORI sites, and with the help of these ORI sites, it performs self-replication. So first point is that your vector should be having this ORI sites for self-replication. Secondly, it should have the MCS, that is multiple cloning sites. These are basically the restriction site of various restriction endonucleases which are present on the vector molecule. Third one is the presence of marker or selection gene which will help you to identify the recombinant cell. Okay, so these are the main properties of vector molecules. First one is origin of replication. Second, it should have MCS, multiple cloning sites, and third one, it should have a marker or selection gene for identification of the recombinant cell. So now there are different terms which you should be aware. जैसे यहाँ पे 2-3 टर्म्स आएंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता लग गया, द सेल इन विच योर फॉरेन डीएनए विल गेट एडेड इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। सेल जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए एंटर करेगा वो होगा आपका ट्रांसफॉर्म्ड। जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं गया, दैट विल बी योर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। एंड नाउ योर ट्रांसफॉर्म्ड सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन, इट कैन बी रिकॉम्बिनेंट और द सेकेंड वन इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है ये इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने यहाँ बात की थी, हमने अपने बोथ वेक्टर को और अपने टारगेट डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, जिसकी हेल्प से आपके सेम रिस्ट्रिक्शन साइट्स जनरेट होंगे वेक्टर के एंड पे भी और जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंड पे भी। तो जो आपका डीएनए लाइगेज है ये इन पॉइंट्स को सील कराता है। अब आपके पास सेम रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो जब भी डीएनए लाइगेज आपका सील कराएगा तो आपका जो वेक्टर है इसकी सेल्फ लाइगेशन भी हो सकती है, यानी कि आपका वेक्टर खुद सील अप हो गया या 2 डिफरेंट वेक्टर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो गए, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर की सेल्फ एनीलिंग। तो यहाँ पे आपका वेक्टर की सेल्फ एनीलिंग भी हो सकती है या आपका वेक्टर
के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इट विल बी द वन जिसके अंदर वेक्टर जाएगा प्लस योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जिसके अंदर सिर्फ आपका वेक्टर मॉलिक्यूल जाएगा दैट विल बी योर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, यहाँ मैंने बात की कि आपका क्या हो सकता है, या तो आपके वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट होगा, या आपका वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो जाएगा या सेल्फ एनील हो जाएगा। तो अगर सिर्फ आपका वेक्टर मॉलिक्यूल जाता है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर तब इट विल बी योर नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर आपका वेक्टर कैरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा देन दैट बैक्टीरियल सेल इज द वन विच इज रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो जो ट्रांसफॉर्म्ड है ये आपका रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है डिपेंडिंग कि उसमें सिर्फ वेक्टर जा रहा है या वेक्टर कैरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बैक्टीरियल सेल के अंदर गया है। ओके, अब जो मैंने यहाँ बात की थी मार्कर या सिलेक्शन जीन की, जिसके ऊपर मैंने एस्टेरिक मार्क लगा रखा है, वो इसके सिग्निफिकेंस को शो करने के लिए किया है कि मार्कर या सिलेक्शन जीन किस तरह से हेल्प करेगी आपके रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे दो जीन्स की मैंने बात की, या तो आपके वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ आपका लैक्जेड सिलेक्शन जीन भी होगा। दोनों में डिफरेंस अभी यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आपके वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस वेक्टर के अंदर है तब वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कराएगा उस बैक्टीरियल सेल में जिसके अंदर वो वेक्टर जाएगा। क्लियर? वो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एलबी मीडिया ई कोलाई के लिए जो हम मोस्टली ग्रोथ मीडिया यूज़ करते हैं दैट इज़ योर एलबी मीडिया, और एलबी मीडिया की जो कंपोजिशन होती है इट कंसिस्ट ऑफ योर ट्रिप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड NaCl। ओके, सो या अब इस केस में हमने एंटीबायोटिक ऐड नहीं किया दैट इज नेगेटिव एंटीबायोटिक। यहाँ पे हमने सिर्फ एलबी मीडिया लिया है, यहाँ पे एलबी मीडिया प्लस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल अगर आपके वेक्टर मॉलिक्यूल में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन है, और इस मीडिया में आपने एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक ऐड किया हुआ है और यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐड नहीं है, तब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे ग्रो करेंगे। जबकि अगर आप एंटीबायोटिक ऐड करते हैं तो जैसे यहाँ पे आप एंटीबायोटिक ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड आएंगे। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि अगर आपने एंटीबायोटिक ऐड नहीं किया है तब आपके पास दोनों ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों ही ग्रो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपने एंटीबायोटिक ऐड किया है तब आपके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड ही ऐड करेंगे, क्योंकि उन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज के अंदर या तो आपका वेक्टर गया है या वेक्टर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। अब इन दोनों केस में आपका वेक्टर कॉमन है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो और जो आपकी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये आपकी वेक्टर मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है। तो चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन जाए, अगर आपका वेक्टर इंसर्ट हो रखा है तब आपके पास वहाँ पे उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगी और वहाँ पे आपको कुछ कॉलोनीज मिलेगी। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो कि अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं डाला है तब आपके पास नंबर ऑफ कॉलोनीज ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस प्लेट पे आपकी बोथ ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों कॉलोनीज आएगी। जबकि अगर आप एंटीबायोटिक ऐड करते हैं तब आपके पास प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज आएगी। तो ये क्लियर रखना, अगर आपने एंटीबायोटिक ऐड नहीं किया है तब आपके पास ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म दोनों आएगी। अगर आपने एंटीबायोटिक ऐड किया है तब आपके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज आएंगी। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलोनीज कम आएंगी। अगर आपने अपने मीडिया में डेट इज एलबी में आपने एम्पीसिलिन ऐड किया हुआ है तब यहाँ पे वही आपकी कॉलोनीज ग्रो करेंगी जिनके पास एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस उनकी होगी ड्यू टू द एंट्री और अपटेक ऑफ योर वेक्टर मॉलिक्यूल। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज आएंगी। अब आपको आइडेंटिफाई करने की जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज आपको प्लेट पे मिली है इसमें से रिकॉम्बिनेंट कौन सी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यानी कि इसमें से कौन सी कॉलोनी है जिसके अंदर आपका वेक्टर कैरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट किया है, और कौन सी ऐसी कॉलोनीज है जिसके अंदर आपका सिर्फ वेक्टर मॉलिक्यूल किया है।
तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज में रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट हम दो मेथड कॉमनली यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज वी आइदर कंफर्म विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एंड सेकंड वी कंफर्म इट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक ऑब्जर्व करके दिखाऊं कि जैसे ये हमारा अगर वेक्टर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ये वाला सेगमेंट एडिशनल जीन का है, तो फर्स्ट पीसीआर से हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर रीजन के अगेंस्ट अपने प्राइमर्स डिज़ाइन करेंगे और इस रीजन को एम्पलीफाई करके देखेंगे. तो यानी कि हम जिन बैक्टीरियल कॉलोनी से डीएनए आइसोलेट करके एम्पलीफिकेशन ट्राई करेंगे, तो जहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट आया स्पेसिफिक बेस पेयर का, हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर हमारा जो वेक्टर है कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉलोनी पीसीआर. यानी कि हमारे पास प्लेट पे जितनी कॉलोनीज आएंगी, हम रैंडम कुछ कॉलोनीज पिक करेंगे, उनसे डीएनए आइसोलेट करेंगे और आइसोलेटेड डीएनए पे हम अपना आइसोलेटेड डीएनए को वी विल बी यूजिंग एज द टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल एंड वी विल परफॉर्म आवर पीसीआर यूजिंग स्पेसिफिक प्राइमर्स. तो जहाँ पे हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा, इट विल शो द पॉजिटिव रिजल्ट दैट पर्टिकुलर कॉलोनी इज योर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी. सेकेंड क्या होगा, हम इस आइसोलेटेड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करेंगे. तो अगर हमारे पास सिर्फ वेक्टर मॉलिक्यूल है, तो हमें अपने जेल पे एक, ये फॉर एग्जांपल बेल है, यहाँ पे हमने अपना सैंपल लोड किया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ वेक्टर मॉलिक्यूल मिला, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन पे ये ओपन अप हो जाएगा, तो सर्कुलर से ये लीनियर फॉर्म पे आ जाएगा और ये आपको जेल पे एक बैंड देगा. और अगर आपके पास वेक्टर कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये एक तो वेक्टर ओपन अप होगा आपका, और जो आपका फ्रैगमेंट है ये आपका अलग होके एक एडिशनल बैंड देगा आपको जेल पे. ठीक है, तो आपको एक अपने रिक्वायर्ड बेस पेयर का, जितना आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है उतने बेस पेयर का या लेंथ का आपको एक एडिशनल बैंड दिखेगा जेल पैटर्न पे, अगर आपका उसके अंदर उस वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ है. ठीक है, तो इस प्लेट से हमें ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज में से हम रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. ओके, इसके कंपैरेटिवली जो लैक्सेट सिलेक्शन है, इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा एक लैक्सेट जीन है. तो अगर आप थोड़ा लैक ओपेरोन की थोड़ी स्टडी करें, तो लैक ओपेरोन में जो होता है अपने प्रोकैरियोटिक सेल में, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए. तो ये लैक्जेड जीन उसी लैक ओपेरोन से लिया गया है, तो इसको लैक्जेड जीन को वेक्टर में इंसर्ट किया हुआ है. अब अगर आपका लैक्जेड जीन फंक्शनल है, यानी कि आपका वेक्टर सेल्फ एनील हो रखा है, तब ये आपके पास क्या लैक्जेड जीन फंक्शनल रहेगा. और अगर आपके वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो यहाँ पे इसकी एमसीएस की डिज़ाइनिंग इस तरह से होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स की, कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट विल डिसरप्ट योर लैक्जेड जीन. अब यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लैक्जेड जीन के बीच में एंटर हुआ है, रिजल्टिंग इन द डिसरप्शन ऑफ द लैक्जेड जीन. ओके, तो जो बेसिकली लैक्जेड जीन है आपकी, ये कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, जो कि कन्वर्ट करता है एक्सगैल सबस्ट्रेट को एक ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में. ओके, तो जो फंक्शनल लैक्सेट जीन है, इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एक्सगैल इनटू अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट. तो अगर आपकी जीन फंक्शनल है, इट विल बी कोडिंग फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंड यू विल बी गेटिंग अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट. और अगर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करती है वेक्टर में, देन दिस जीन विल बी डिसरप्टेड, देयर विल बी नो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंड नो फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट. तो अब प्लेट में हमें दिख गया कि जहाँ पे ब्लू कॉलोनीज है, दोज आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, यानी कि वहाँ पे लैक्सेट जीन आपकी डिसरप्ट नहीं हुई है, आपको फंक्शनल एंजाइम मिल रहा है जो कि एक्स गैल को ब्लू कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. और जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है जिनके अंदर आपका डीएनए इंसर्ट किया है, वहाँ पे आपकी लैक्सेट जीन डिसरप्ट हो गई है एंड यू आर गेटिंग अ वाइट कलर्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लू कॉलोनीज है दोज विल बी योर नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो वाइट कॉलोनीज है दोज विल बी योर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. ओके, तो यहाँ पे हमें प्लेट पे विजिबल फॉर्म में पता लग जाता है कि हमारे पास कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट. जबकि यहाँ पे हमें कंफर्म करना पड़ता है, जो प्लेट पे हमें मिलती है ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज, की इसमें से कौन सी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी
नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, अब जब हमें एक बार यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी मिल गई, हम फर्दर इसका इनोकुलेशन या इनोकुलम लगा सकते हैं फ्रेश कल्चर में टू इंक्रीज इट्स नंबर। अगर हम इसका स्पेसिफिक कॉलोनी का इनोकुलम लगाएंगे, तब जो भी इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी या नेक्स्ट डिवीजन चलेगी, उसमें हमारा जो ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है वही ग्रो करेंगी, और उन सारी कॉलोनीज के अंदर हमारा वेक्टर कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट विल प्रोसीड। ओके, so this completes the basics of gene cloning, the main properties of vector molecule, the difference between transformed and non-transformed, and further difference between the recombinant and the non-recombinant colonies among the transformed colonies, and finally how your selection or marker gene will help you in identifying the transformed colonies and basically the recombinant colonies which are required in your gene cloning experiment. So this completes my lecture. I hope you like it. In case you like it, go and subscribe the channel. Thank you.